Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture 2 of week 2 of your subject GIS and remote sensing. And in the previous lecture, we started with the maps and we defined what is a map and what are the different type of maps and how we represent the different objects on the map, and then we talked about the scale of the map, and later we started how to georeference the different objects on the map, and we talked about the different georeferencing platforms, and talked about the vertical and horizontal datums. Those are actually the source of georeferencing. And then we talked about the ellipsoid and geoid model, and then we talked about the longitude and latitude coordinate system, that is the older coordinate system, and which is also 3D. And we will continue discussing this coordinate system, and then we will talk about the other georeferencing things related to GIS that we are going to use in our lab exercises as well. So we already know that how to read the longitude and latitude scales on a world globe, right? So this is a simple example that is given over there, that also discussed yesterday in the previous lecture as well. So how we are going to read the 45-degree west of prime meridian. So it means this is, if this is the prime meridian, and we already know that we need to read the scale from the origin of the earth. So we will move 45 degree towards west like that, and then we will go up, up to 455 degree north of the equator. So this is how we will move, and then we can locate a particular object by following this procedure. So this is how we can read the longitude and latitude on the world globe. And another important thing that was being discussed in the previous lecture as well, the longitude and latitude values are not Cartesian coordinates. So what are the Cartesian coordinates? These are actually the simple XY coordinates on a flat map, right? On a 2D surface. So where the straight lines or whatever the distances are there, those are pretty much straight, and there is no curve involved in those distances when we are going to find out the distances between two points, or we are going to establish a relationship between different points, so we need to draw these straight lines. So how we can evident this thing on the globe? You can see that near the equator, the longitude and latitude lines are almost square. Still there is a difference. This length is little bigger. This length is little bigger than this length, right? And similarly, when you go move towards the north or south, you see that this difference is very much prominent. You see that, and similarly over there it is getting smaller and smaller. So it means the 1 degree of longitude at equator is not equal to the longitude near the poles, right? So we need to we actually need to keep this thing in our mind. All right. So now we are going to talk about the projections, and why we are supposed to have projections. This is very important thing to understand, as we know that the earth is a spheroidal surface. It is 3D, but when you look at the map, in Google you can say that, or a paper map, then the earth is reflected as 2D surface, right? So what we need to do? So it means we need to project the 3D surface onto
onto a 2D surface to show the distances and the relationship of different objects on a map. So when we apply the projection, then there is always a distortion. Similar, I mean, for example, if we have a football over here, so you can see that if we cut it into half, and then what we are going to do, if you compress it, right, it is still a 3D object. When you compress it, it will go like that, right? So what does it mean? It means there are extreme level of distortions around the central point. Maybe there will be less distortion, but when you go on the sides there will be more distortion, right? So it means whenever we project the 3D surface onto a 2D surface, there is a kind of distortion, and we need to deal with that distortion. We need to apply some corrections so that the exact distances whatever are on the globe should be preserved, right? So it means there are different type of projections available, and those projection surfaces are used to project the 3D surface of the earth onto a 2D map. So this is how, I mean, if let's suppose if we cut it out, the pasted map on the globe, you will see that, so this, because the longitude and latitudes are curved surfaces. So you see that this is the distortion along the central point. There is almost no distortion or minimum distortion. So it means whenever we are moving away from the central point of a projection, the distortion is getting increased, right? So similarly, if we have the distortion, if we have a projection from the equator like that, so if this is the equator part, and you see that, I mean, if you cut it out in slices, and then we have extreme level of distortion over here on the edges, right? So how to deal with this sort of issue? This is very important thing. Then to deal with these kind of things, we need to first of all define the different types of projections, and then we apply those projections on different parts of the world. So how we can define a projection? A projection of a globe onto a flat map using a grid of lines of latitude and longitude. Okay, this is actually the map projection. It defines the spatial relationship between the locations on the earth and their relative locations on a flat map. So it means we need to apply some sort of approximation when we are going to project the real-time distances on the globe to the flat surface. So it is a mathematically described technique of how to represent Earth's curved surface on a flat map, right? And very important thing, map projections always introduce error and distortion. And now question arises, why we do the map projection? If there are errors and distortion, then why we are going to do that? Because we cannot carry the 3D globe everywhere in the world, right? So we need to have some flat maps, right? So this is the reason why then what we do, we need to do the projections, and then we need to apply the errors and distortions. So those will actually fix these kind of issues. And there are different properties of the maps, those we need to know when we are going to apply the map projection. Number one is area, second is shape, then distance, then direction. So what does it mean? इसका मतलब ये है कि जब आपने किसी भी मैप की 4 प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो डिफरेंट लोकेशंस हैं या डिफरेंट शेप्स हैं, लेट्स सपोज ये एक स्क्वायर है, ठीक है? ये 3D मैप के ऊपर अ काइंड ऑफ स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपके पास एक उसकी एज ये है, एक उसकी एज ये है,
एक उसकी एज ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जब आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे 2D मैप के ऊपर, तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं इनका एरिया प्रिजर्व रहना चाहिए। लेट्स सपोज के वो दो दो 2 बाय 2 मीटर है, किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है बाय 200 किलोमीटर। इट मीन्स कि जो इनका एरिया है वो प्रिजर्व रहना चाहिए जब आप इसको अप्लाई, जब आप इसको पेस्ट करते हैं 3D सरफेस से 2D सरफेस के ऊपर। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज द शेप, इसकी शेप भी वही रहनी चाहिए कि जैसे ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर ही होना चाहिए, ठीक है। सो इट मीन्स कि ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। एंड देन वी हैव डिस्टेंस, इट मीन्स कि जो आपके डिस्टेंसेस हैं इन पॉइंट्स के, ठीक है, ये जो डिस्टेंसेस हैं ये भी सेम ही रहने चाहिए, ठीक है। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन के जो नॉर्थ से इसका जो बन रहा है, ठीक है ना, जो भी एंगल है, जो भी इसकी पोजीशन है, वो भी प्रिजर्व होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, दोज शुड बी प्रिजर्व्ड इन एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्शन, बट इन रियलिटी इट इज वेरी डिफिकल्ट कि किसी एक प्रोजेक्शन के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज प्रिजर्व हो जाए। दिस इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि फिर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे हमें किसी किसी आई मीन पॉइंट की, ऑब्जेक्ट की सिर्फ लोकेशन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए होती है, ठीक है। तो वहां पे फिर क्या होगा कि आप ऐसी प्रोजेक्शन लेंगे जिसमें डायरेक्शन प्रिजर्व रहे 100% या नियरली 100%, लेकिन बाकी जो अदर प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो सकती हैं, ठीक है उसमें। तो इस तरह की जो इसी तरह से डायरेक्शन और इसी तरह डिस्टेंस है, जैसे डिस्टेंस में भी ऐसे होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट जिनके डिस्टेंसेस डिस्टर्ब ना हो, अगर उसका एरिया डिस्टर्ब हो रहा है या शेप डिस्टर्ब हो रहा है तो दैट इज फाइन, ठीक है। तो उस पर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इट मीन्स कि जैसे नेविगेशन है, नेविगेशन में आप चाहते हैं कि 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो प्रिजर्व होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जो है ना वो वेरिएशन नहीं आनी चाहिए जब आप, अगर उसको आपने गूगल मैप के थ्रू आपने किसी जगह पे जाना है। और उसके अलावा डायरेक्शन, तो जो नेविगेशन है उसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आप डिस्टेंस और डायरेक्शन को प्रिजर्व रखते हैं, उसका वो फिर नेविगेशन के लिए ऐसे जो है ना वो प्रोजेक्शंस यूज होती हैं, ठीक है। सिमिलरली किसी जगह पे हमें एरिया को प्रिजर्व रखना पड़ता है। जैसे आप हाउसिंग सोसाइटीज में क्या करते हैं कि आप प्लॉटिंग करते हैं, तो प्लॉटिंग में आपको पता है कि एरिया में चेंज नहीं आनी चाहिए, एरिया आपका एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो कि आपका जो एक्चुअल, जो आपका क्या कहते हैं उसे, जो ग्राउंड के ऊपर है वही एरिया की जो डायमेंशन है वो आपके मैप के ऊपर भी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बड़े स्मॉलर लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह से कुछ ऐसे और उसके बाद शेप जैसे है, तो जैसे कंट्री है तो कंट्री की शेप जो है उसकी बाउंड्री की वो डिस्टॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसका एरिया डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की प्रोजेक्शन यूज होती हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करने के लिए। बाकियों में उसमें डिस्टॉर्शन आ सकता है, राइट। लाइक जिसमें आपके पास जैसे एरिया को जो प्रिजर्व करने वाले प्रोजेक्शन है उसे कहते हैं इक्वल एरिया इक्विवेलेंट प्रोजेक्शन। मैप्स दोज प्रिजर्व एरिया मेजर्स, इक्वल एरिया इक्वल प्रोजेक्शन, ठीक है, इक्विवेलेंट प्रोजेक्शन ये उस प्रोजेक्शन का नाम है जो कि यूज होती है जहां पे आपको एरिया की मेजरमेंट्स जो है वो एक्यूरेटली चाहिए। इसी तरह से इसके एग्जांपल क्या है, एल्बर्स इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। ये जो प्रोजेक्शंस के नाम है ये सारे गिवन है आपकी जो जीआईएस जो है सॉफ्टवेयर आरजीआईएस के अंदर गिवन है, और आप भी डिफरेंट प्रोजेक्शंस को देखेंगे। नेक्स्ट जो आपकी लैब होगी उसमें आप प्रोजेक्शन से प्ले करेंगे, आप देखेंगे कि जो आपके पास जो प्रोजेक्शंस हैं किस तरह से एक मैप की प्रोजेक्शन को दूसरी मतलब एक प्रोजेक्शन को दूसरी में आप कन्वर्ट करेंगे तो उससे आपको मैप जो है उसकी शेप भी बदलती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो एल्बर्ट इक्वल एरिया प्रोजेक्शन क्या है, जहां पे एरिया को प्रिजर्व किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी एक्सट्रीमली डिस्टॉर्ट हो जाती है प्रॉपर्टीज, बाकी प्रॉपर्टीज में थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है, डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्शन की टाइप क्या है। इसके अलावा शेप को जो प्रिजर्व करती है प्रोजेक्शन में कहते हैं कन्फॉर्मल प्रोजेक्शंस, ठीक है, कन्फॉर्मल प्रोजेक्शंस प्रिजर्व शेप मेजर।
एग्जाम्पल क्या है, मर्केटर प्रोजेक्शन। मर्केटर प्रोजेक्शन, अच्छा मैं एक एडिशनल हैंडआउट भी यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर प्रोजेक्शन से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, ठीक है। तो स्लाइड्स के अलावा आप उसको भी स्टडी करेंगे और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो यू आर वेरी वेलकम टू आस्क। सिमिलरली डिस्टेंस, डिस्टेंस में जैसे प्रिजर्व डिस्टेंस मेजरमेंट्स, तो इसमें क्या है, इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन, इसको क्या कहते हैं, इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शंस। Similarly, we have some projection where we need to preserve direction. So direction from a single location to all other locations are preserved. ठीक है, इसे कहते हैं एजीमथल प्रोजेक्शन। एजीमथल का मतलब क्या है, जैसे हम नॉर्थ से मुख्तलिफ चीज़ों की ओरिएंटेशन लेते हैं, डिफरेंट फीचर्स की ओरिएंटेशन लेते हैं, तो इसे कहते हैं एजीमथल प्रोजेक्शन, जहाँ पे डायरेक्शन प्रिजर्व्ड होती है। जैसे कि आप सर्वेइंग में क्या करते हैं, आप बेरिंग्स लेते हैं, लाइंस की बेरिंग्स लेते हैं ना, तो वो लाइंस की बेरिंग्स आप नॉर्थ से ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो प्रोजेक्शन का जो सिस्टम आप यूज करेंगे वो है एजीमथल प्रोजेक्शन, जिसमें आप नॉर्थ से डिफरेंट एरियाज की डायरेक्शंस को लेते हैं, ठीक है। डिप एंड स्ट्राइक आप लेते हैं, अगर आप जियोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो आप डिप डायरेक्शन ले रहे होते हैं नॉर्थ से, आप स्ट्राइक मेजर कर रहे होते हैं नॉर्थ से इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। सो देर आर टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, जैसे मैंने बात की कि उसमें आपके पास जैसे सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस हैं, कॉनिकल प्रोजेक्शंस हैं, प्लानर हैं, एजीमथल प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से आपके पास क्या कहते हैं उसे डेवलप होती हैं, इसके लिए डिफरेंट शेप्स को यूज किया जाता है। वो जो प्रोजेक्शंस हैं वो डिफरेंट शेप्स से आप डेवलप करते हैं। नंबर वन जो है वो, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लें कि ये प्रोजेक्शंस की टाइप नहीं है, ये डेवलपेबल सर्फेसेस है। यू नीड डेवलपेबल सर्फेसेस टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, जैसे सिलेंड्रिकल, कॉनिकल, प्लानर और एजीमथल, ठीक है, प्रोजेक्शंस। जैसे आप अर्ली क्लासेस में जो क्या कहते हैं उसे, आप एक्सपेरिमेंट्स करते थे कि जैसे ग्लोब है, ग्लोब को अगर आप लाइट के इन बिटवीन ले आए, एक तरफ लाइट सोर्स रखें और एक तरफ ग्लोब है, तो जब लाइट ग्लोब के ऊपर पड़ती है तो आपको पता है कि वो डाइफ्रैक्ट हो जाती है साइडों से, उसके बाद उसके पीछे अगर कोई बैकग्राउंड है तो उसके ऊपर उसकी शेप बन जाती है, वो या उसकी शेप बन जाएगी या उसका इंप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रोजेक्शंस होती हैं इसको भी आप इसी तरह से डेवलप करते हैं कि आप जो है वो अर्थ जो है, जो कोई सॉलिड है, ग्लोब के अराउंड अगर आप लेट्स सपोज पेपर को रैप कर देते हैं तो वो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन बन जाती है। अगर आप कोन बना के उसको जो है ग्लोब के ऊपर रखते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाती है, वो कॉनिकल प्रोजेक्शन बन जाती है, इस तरीके से, ठीक है। और सिलेंडर जो है वो पेपर को आप इस तरह से रैप करें ग्लोब के दरमियान, तो यहाँ पे अगर लेट्स सपोज ये आपका ग्लोब है, ठीक है, तो इस तरह से ये देखें कि जहां जहां से ये टच करता है वहां पे आप पॉइंट लगाते जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, ये लाइनें लगना शुरू हो जाती है यहाँ पे ऐसे। तो ये आपके पास आ जाती है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। कॉनिकल में क्या होता है कि ग्लोब के ऊपर आप कोन को बना के जैसे पेपर की रख देते हैं, तो उससे जो प्रोजेक्शन रिसीव करेंगे वो कॉनिकल प्रोजेक्शन होगी, ठीक है। एजीमथल में क्या होता है कि आप पेपर जो है वो कार्टेशियन जैसे पेपर है, उसको आप सिलेंडर के आप उसको ग्लोब के साथ अटैच कर दें किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसके बाद उसकी प्रोजेक्शन देखें अर्थ की जो कोऑर्डिनेट्स लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के उसके ऊपर, तो उससे आपके पास जो है वो एजीमथल जो प्रोजेक्शन है वो आ जाएगी। सो एस्पेक्ट्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन। एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है कि आप वो जो प्रोजेक्शन है उसको कहाँ कहाँ रख रहे हैं। बाद दफे ऐसी प्रोजेक्शन भी होती है जिसको आप नॉर्थ पोल पे रखते हैं, जैसे एजीमथल प्रोजेक्शन है, आप नॉर्थ पोल को सेंटर लेते हैं और उसके बाद नॉर्थ से फिर आप बाकी लोकेशंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से साउथ को भी आप सेंटर ले सकते हैं सिलेंड्रिक। बाद दफा आप इक्वेटर के ऊपर भी प्रोजेक्शन को, जहाँ पे प्रोजेक्शन जो है वो टच करती है आपके ग्लोब को, उसे उसके हिसाब से वो आप क्या कहते हैं उसको एस्पेक्ट कहते हैं, ठीक है, वो डिफाइन करना पड़ता है। तो डेवलपेबल सरफेसेस ओरिएंटेशन जो है वो नॉर्मल भी हो सकती है, वो ट्रांसवर्स भी हो सकती है, वो ओब्लीक भी हो सकती है, ठीक है। तो मैप प्रोजेक्शंस की डिटेल बुक में भी गिवन है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल कि आपके पास क्लासेस ऑफ मैप प्रोजेक्शन, जैसे हमने अभी डिफाइन किया, जैसे ये सिलेंड्रिकल है, आप पेपर को रैप करें ग्लोब के अराउंड, तो आप देखेंगे कि सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। और सिलेंडर में फिर आप देखेंगे कि जहां जहां से वो टच हो रहा है ग्लोब के साथ, वहां पे आप लाइंस लगाना शुरू कर देंगे, ये लाइंस लगना शुरू हो जाएंगी।
इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ग्लोब की पोजीशन को चेंज करेंगे, फिर जहां फिर वो उसकी वो वाली सार इसी तरह से आप ग्लोब की पोजीशन को चेंज करते जाएंगे, जो कि ना टेंजेंट बनता जाएगा आपकी जो सिलेंडर है उसके साथ। तो वो लाइनें आप लगाते जाएंगे और आपके पास जो है वो पूरा जो ग्लोब है वो 2D सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली कोन है, तो कोन में भी आप ये देखें कि कोन का साइज डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है। बाद दफा साइज जो है सिर्फ इसको टच ही करेगा। आप देखें कोन जहां से टच कर रही है उस पॉइंट्स को आप नोट कर लेते हैं जहां से वो टेंजेंट है। उसके बाद आप इसी तरह से जो बाकी जो पॉइंट्स हैं वो भी आप इसी तरह से ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो सिमिलरली ये इसको आप कहेंगे कॉनिकल प्रोजेक्शन। इस तरह से पूरा ग्लोब जो है वो उसको कॉन्स की ओरिएंटेशन को चेंज करके तो आप उसकी जो है वो जो प्रोजेक्शन है वो अचीव कर लेंगे। सिमिलरली एजीमथल प्रोजेक्शन जैसे मैंने कहा है उसमें आप देख लें कि नॉर्थ को सेंटर लिया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है कि ये सारा जो प्रोजेक्शन है इसका ये प्लेन का जो है, ठीक है, ये इसके ऊपर जो है वो आप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जो भी प्रोजेक्शन प्लेन पे आए, मतलब इसको आप इस तरह से कर लें कि ये जैसे ये है, फिर उसके बाद ये है, यू नो, ऑल राइट। सो दीज आर कॉल्ड एज नॉर्मल प्रोजेक्शन। ये आपकी है नॉर्मल प्रोजेक्शन। एक होती है सीकेंट प्रोजेक्शन। ठीक है, सीकेंट प्रोजेक्शन में क्या होता है कि आपकी प्रोजेक्शन जो है दो जगहों पे कट करती है ग्लोब को। जैसे ये देखिए, ये टेंजेंट है, ये आपके क्या है एक ही जगह पे टच करेगी, तो बाकी जो है वो उनके दरमियान में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होगा। जिनके सर्कल को एक दफा टच करें तो वो नॉर्मल प्रोजेक्शन है, अगर सर्कल को दो दफा टच करे या इंटरसेक्ट करे, ये देखिए ये इंटरसेक्शन हो रही है यहाँ से, ये दो इधर से भी हो रही है इधर से भी हो रही है, तो ये एक ये आपके पास है और एक आपके पास ये सर्कल है, तो इसको हम कहेंगे सीकेंट प्रोजेक्शन। तो ये भी कॉनिकल हो सकती है, एजीमथल हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है। ठीक है, सिलेंडर को थोड़ा छोटा कर दें तो दो आपके पास आ जाएंगे, राइट। So these are the different type of developable surfaces. Those are used to have the projection of 3D Earth onto a 2D map. एग्जाम्पल जैसे कि अभी डिस्कस किया कि एजीमथल प्रोजेक्शन है वो आप देख लेंगे, इस तरह से एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आप डिफाइन करते हैं और उसके बाद आप इसके जरिए से डिफरेंट जो लाइंस की जैसे बेरिंग है, स्ट्राइक लाइन है, ड्रिफ्ट डायरेक्शन है, या आप और जो सर्वे के अंदर डिफरेंट लाइन फीचर्स को ड्रॉ करते हैं तो उसमें वो बेरिंग यूज होती है। ठीक है, दैट इज अ टाइप ऑफ एजीमथल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एजीमथल एंगल क्या होता है, ये आप मतलब ये उसकी डेफिनेशन है, यू ऑलरेडी फेमिलियर कि अगर 0 डिग्री है इट मींस कि ड्यू नॉर्थ है। ठीक है, ड्यू ईस्ट का क्या मतलब है, 90 डिग्री फ्रॉम द नॉर्थ। उसके बाद साउथ ए 180 एंड वेस्ट 270। ठीक है, इस तरह से आप इसको बेरिंग्स को शो करते हैं। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन ये उसकी लिटिल डिटेल है कि जब आप पेपर को रैप करेंगे, ये देखिए ये एक लाइन लग जाएगी। ठीक है, इस तरह जब आप ग्लोबल को नीचे की तरफ शिफ्ट करें या इसको आप इस तरह से ऊपर की तरफ शिफ्ट करें तो आपके पास ये बाकी लाइनें लगना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, 3D सरफेस जो अर्थ की है उसको मैप की 2D सरफेस के ऊपर जो है वो आपने ओवरलैप कर दिया। सो दिस इज दिस सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। ठीक हो गया। सो सिलेंडर इज रैप्ड अराउंड द इक्वेटर, द प्रोजेक्शन इज कन्फॉर्मल। ठीक है, any point scale is the same in both directions, shape of the small features is preserved। ठीक है, conformal projection में shape of the small feature जो है वो preserve हो जाती है। features in high latitude are significantly enlarged। जो हाई लैटिट्यूड के अंदर जो फीचर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली एनलार्ज हो जाती है, जैसे ये यहाँ पे मतलब आप इसमें जो है वो यहाँ ये जो नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जो आपके पास जो फीचर्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है, इक्वेटर के अराउंड जो है वो आपका जो शेप्स हैं वो प्रिजर्व हो जाती है, लेकिन वहाँ पे वो बड़ी हो जाती है, मतलब जो फीचर्स हैं वो स्केल, क्योंकि वो डिस्टॉर्शन है, जैसे कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कर्व्ड लाइंस हैं, लेकिन जब आप उसको फ्लैट करने की कोशिश करते हैं तो वो जो एक्सट्रीम डिस्टॉर्शन है नॉर्थ की तरफ आएगी और साउथ की तरफ आएगी। ठीक हो गया। ऑलराइट, सो कॉनिकल प्रोजेक्शन में जैसे कि आपके पास ये इस तरह से ये कोन्स बनाते हैं, आप देख रहे हैं कि ये एक कोन से एक लाइन लगी, दूसरी से दूसरी तीसरी, इस तरह से आप इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह से आपके पास ये कॉनिकल प्रोजेक्शन इस तरह की बनेगी आपकी 2D सरफेस के ऊपर भी। इसमें आप कोशिश करेंगे कि इसकी जो ओरिजिनल शेप है वो प्रिजर्व हो जाए।
So this type of projection, उसकी example है Lambert conformal conical projection is commonly used to map North America. ठीक है, North America जो है उसको, क्योंकि आप जहाँ पे ये पोलर रीजन जो है ना उनको ये मैप करने के लिए जनरली यूज होती है कॉनिकल प्रोजेक्शन. ठीक है. देन वी हैव ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है जैसे आप स्टीरियो नेट्स यूज करते हैं तो उसमें भी जो ग्लोब होता है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही होती है. तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, मिनिमल डिस्टॉर्शन नियर द सेंटर, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन नियर द एजेस. जो जहां पे भी आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का सेंटर लेंगे वहां पे मिनिमम डिस्टॉर्शन होगी. जैसे जैसे आप साइड्स की तरफ जाएंगे वो डिस्टॉर्शन जो है वो बढ़ती जाएगी. ठीक है. The aerial scale decreases with distance from the center. Aerial scale is zero at the edge of the hemisphere. ठीक है. आप देखेंगे एरियल स्केल जीरो कैसे हो जाएगा, ये देखें यहाँ एज से आपको चीजें नजर ही नहीं है क्योंकि वो दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएगी. अगर आप किसी चीज को साइड से देखते हैं, अगर आपके पास लेट्स सपोज ये आप ये इस तरह से ये डिस्टेंस है, यू सी दैट अगर आप यहां से उसको देखेंगे, ठीक है, तो यहां से जब आप उसको देखेंगे तो आपको ये डिस्टेंस सही नजर आएगा. लेकिन जैसे ही आप अपनी पोजीशन बदल लेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे, लेट्स सपोज आप यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस जो है ना वो इस तरीके से नजर आएगा. ठीक है. इट मीन्स कि वो डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा. लेकिन जैसे ही आप यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से आप देखेंगे तो वो दोनों जो पॉइंट्स हैं वो मिल जाएंगे, तो आपको जीरो, मतलब आपका जो स्केल जीरो हो जाएगा, आपको वो दूसरा जो पॉइंट है वो नजर ही नहीं आएगा. ठीक है. तो एजिस के ऊपर ये सिचुएशन हो सकती है. सो ट्रू डायरेक्शन, तो इट मीन्स कि जो सेंट्रल पॉइंट्स हैं वहां जहां जहां पे आप सामने देख रहे हैं परपेंडिकुलर एक चीज के साथ, मतलब आप परपेंडिकुलर खड़े हैं दो ऑब्जेक्ट्स के सामने, तो इट मीन्स कि वहां पे आप एग्जैक्ट डिस्टेंसेस जो है वो देख सकते हैं. ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. ऑलराइट. सो डायरेक्शन में क्या है, टू डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट. Distance, radial scale decreases with distance from the center and becomes zero on the edges. So similar जो area के साथ हो रहा है वही आपके distance के साथ हो रहा है. The scale perpendicular to the radii along the parallels of the polar aspect is accurate. This is what I am talking about. ठीक है. So this is what we need to understand. Map projections always introduce errors and distortion. So this is the important thing, but we cannot avoid. जब आप सोच रहे होंगे कि जब errors and distortion is there, फिर हम map projection करते क्यों? Reason is simple, क्योंकि हमने 3D को 2D में convert करना है. तो map projection जो है उसको accordingly फिर आपने define करना है, उसके errors को भी define करना है. तो this is the reason why हमारे पास number of projections available हैं globe की, जो कि डजन ऑफ प्रोजेक्शन बल्कि हैं. कुछ प्रोजेक्शन के साथ आप प्ले भी करेंगे. ठीक है. तो इन GIS तो वो जो प्रोजेक्शंस हैं उसमें फिर क्या होगा कि जो आपके लिए बेस्ट प्रोजेक्शन है आप वो लेंगे. आप किस एरिया में डिपेंड करता है कि वहां के लिए कौन सी बेस्ट प्रोजेक्शन है. अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है, रिमोट सेंसिंग डेटा किसी और प्रोजेक्शन में, तो आप उसको जब अपने अपने एरिया के लिए यूज करेंगे तो वहां पे डिस्टॉर्शन आ जाएगी. ठीक है. तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसकी पहले कन्वर्जन करेंगे. आप उस प्रोजेक्शन को जो है ना वो जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए प्रोजेक्शन जो है वो कॉनिकल प्रोजेक्शन जो है वो ज्यादा बेहतर है. ठीक है. तो उसके लिए फिर अगर आपके पास लैम्बर्ट जो है इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है तो आप क्या करेंगे, उसको उसमें से उसको कन्वर्ट करेंगे. कन्वर्ट करके आप उसको कॉनिकल प्रोजेक्शन में लेके आएंगे. अगर आप इक्वेटर के पास है तो आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है उसको मतलब प्रेफर करेंगे. ठीक है. सो दिस इज हाउ कि अगर आप लेट्स सपोज प्रोजेक्शन किसी पर्टिकुलर एरिया की गलत ले लेते हैं तो फिर इस तरीके से ये डिस्टॉर्शन आ जाएगी. जैसे ये नजर आ रही है आपको, जैसे ये फ्लोरिडा है, आप देखेंगे ये दोनों पॉइंट इसके हिल गए. ठीक है. ये डिफरेंट प्रोजेक्शन जब आप जो आपके एरिया के लिए नहीं है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, उसके डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो अगर आप इस पे जो प्रोजेक्शन है वो आप सदर्न हेमिस्फीयर वाली लगा रहे हैं तो इट मीन्स कि फिर ये इस तरह से मैप के अंदर डिस्टॉर्शन आ जाएगी. तो आपको ये डिफाइन करना होगा कि कौन सी जो प्रोजेक्शन है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है. सो वी विल लर्न दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन दी लैब पोर्शन. ऑलराइट. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस गिवन ओवर हियर. आप इसको देख सकते हैं कि वो प्रोजेक्शन नजर कैसे आएगी.
और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके बाद मेजर यूजेस क्या है। ठीक है, आपको जो हैंड आउट दिया है उसके अंदर भी प्रोजेक्शन जो है दोज आर आल्सो प्रोवाइडेड। ऑलराइट, सो ये अब आपने इसको थोड़ा सा देख लेना है। So in ArcGIS, what you have Arc toolbox. Toolbox means there are number of you can say the tools available in that Arc toolbox. Those are used to perform different type of activities, and you will get familiar with that Arc toolbox as well when you are going while you are doing your exercises. ठीक है, सो इट कंटेन्स द प्रोजेक्शन टूल। इसके अंदर है टूल बॉक्स में। फिर आप क्या करेंगे, किसी एरिया के किसी मैप की प्रोजेक्शन आपने डिफाइन ही नहीं की। लेट्स सपोज आपने सर्वे का मैप बनाया, तो सॉरी सर्वे करके आपने मैप बनाया, किसी एरिया की टोपोग्राफिक शीट बनाई है, अब आपने उसको प्रोजेक्ट करना है जीआईएस के अंदर। तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको पहले डिजिटाइज करेंगे, डिजिटाइज करके फिर उसके बाद आप उसकी प्रोजेक्शन को डिफाइन करेंगे। आप देखेंगे कि आपका जो एरिया है वो पाकिस्तान में है, तो हमें कौन सी प्रोजेक्शन चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली जब आप उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो वो फिर क्या होगा कि आपका एग्जैक्टली जो है वो मैप वही इसी एरिया में आ जाएगा जहां पे आपने उसको मैप किया है। ठीक है, इन इन रियलिटी। तो उसमें फिर वो जब आप डिजिटाइजेशन करते हैं तो उसमें ज़ाहिर है कि शेप फाइल्स बनती हैं, शेप फाइल्स को आप प्रोजेक्ट करते हैं, और वो जो प्रोजेक्ट जब होती हैं तो उसकी जियो रेफरेंसिंग जो है वो डिफाइन हो जाती है। यू विल डील विद दिस काइंड ऑफ इश्यूज इन और यू कैन से द टास्क इन जीआईएस सॉफ्टवेयर। तो फिर आप क्या करते हैं, जब आप आर्क मैप जो है उसके ऊपर आप डिस्प्ले देख लेते हैं कि प्रोजेक्शन जब आप चेंज करते हैं तो टूल बॉक्स के जरिए तो आपका आर्क मैप एक्चुअली जो डेस्कटॉप डिस्प्ले है उसका जीआईएस का, उसमें फिर आप उसकी प्रोजेक्शंस को देख सकते हैं कि वो चेंज मतलब आप डिफाइन करें या आप उसको रीप्रोजेक्ट करें। एक दफ़ा आपकी प्रोजेक्शन अवेलेबल है किसी पर्टिकुलर डेटा की, लेकिन आपको पता है कि ये प्रोजेक्शन ठीक नहीं है मेरे एरिया के हिसाब से, फिर आप उसको रीडिफाइन कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, so we need to define the relationships between coordinate system and map projection. coordinate system का मतलब long lat जो coordinate system है, that is actually for curved surfaces, that is for 3D globe। तो वो फिर आपका मैप प्रोजेक्शन के साथ रिलेशनशिप्स भी डिफाइन करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से कौन सी जो 3D सरफेस के ऊपर जो डिस्टेंसेस हैं या जो आपस में जो रिलेशनशिप है वो उसको किस तरह से प्रिजर्व करना है मैप प्रोजेक्शंस में। तो ये सारे मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं, एल्गोरिदम्स हैं जिसकी बेस के ऊपर ये प्रोजेक्शंस जो हैं वो डिफाइन की गई हैं। So map projections define how positions on the Earth's curved surface are translated onto a flat map surface। ठीक है, so जो projections हैं, these are actually the mathematical models based on the research of different mathematicians। और वो जो है फिर आप उसमें से देख लेते हैं कि कुछ लोकलाइज्ड मैप प्रोजेक्शंस हैं, कुछ आपकी ग्लोबल मैप प्रोजेक्शंस हैं, और कौन सी बेस्ट फिट है आपके एरिया में उसको फिर आप अकॉर्डिंगली डील करते हैं, आप उसको अप्लाई करते हैं आप अपने एरिया के ऊपर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, मतलब वी ऑलरेडी डिफाइंड इट, अ नेटवर्क सुपरइम्पोज्ड on the flat map surface to provide the referencing framework by which positions are measured and captured। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट्स में जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है दुनिया में उसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर, यूटीएम, यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर यूटीएम। तो ये जो प्रोजेक्शन सिस्टम है, दिस इज अ काइंड ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको आप नेविगेशन में भी यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यही पूरी दुनिया में यूज होता है। ठीक है, इसमें आप मीटर्स के अंदर एक्स वाई जो पोजीशन है, जैसे कार्टेशियन में आप मतलब जो भी स्केल हो आप उसको फ्लैट सरफेस पे शो करते हैं, डिस्टेंस को फ्लैट या स्ट्रेट लाइंस के थ्रू। तो सिमिलरली यूनिवर्सल जो मर्केटर सिस्टम है इसमें भी स्ट्रेट लाइंस होती हैं, आपकी जो कर्व्ड जो लॉन्गिट्यूडनल जो आपके पास जो कर्व्ड आपके पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ग्रिड्स हैं, आप उसको जो है वो स्ट्रेट स्क्वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस के अंदर। तो इसकी भी डेफिनेटली कन्वर्जन है आपकी जो है ना वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। तो उसमें आप कन्वर्जन को अप्लाई करके तो वही डिस्टेंसेस जो कि आपके 3D मैप के ऊपर आप उसको प्रिजर्व कर लेते हैं,
2D मैप के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज जो प्रोजेक्शन सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज यूटीएम, यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर। सो दिस इज हाउ यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर इज फॉर्म। अब देखेंगे ये आपके पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो आपके पास जो लाइंस हैं, ठीक है, मेरिडियंस हैं, ठीक है, मेरिडियंस हैं और लैटिट्यूड लाइन है, ठीक है। तो ये जो आपके पास जब आप इसको देखें किस तरह से बाउंडेड है, आप देखें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं और इसके अलावा ये कर्व्ड लाइन है, आप देख लें ये कर्व्ड लाइन है। तो जब आप इसको यूटीएम में कन्वर्ट करेंगे तो यूटीएम जो है वो इस तरीके से ये ग्रिड सिस्टम है, ये आप देख रहे हैं डॉटेड लाइंस, ठीक है। तो ये जो आप सारी ये आपके पास क्या होगा, ये सारी डिस्टॉर्शन है। इस डिस्टॉर्शन को आप जो है वो क्या करेंगे, इसको आप करेक्शन अप्लाई करके स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से ये बैकग्राउंड में जो डॉटेड लाइंस नजर आ रही है यूटीएम सिस्टम है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये सेंट्रल मेरिडियन है, देखें अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन लग रही है लॉन्गिट्यूडनल, और ये एक आपने स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसमें ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन से प्रिजर्व होता है, ये आपने सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन यूज करनी है और ये स्ट्रेट लाइन आपने इसको यहाँ पे लगा दी। उसके बाद ये आपने फिर उसके बाद आपने एक स्ट्रेट लाइन ये वाली लगा दी है, देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन लग गई। सॉरी फॉर द डिस्टॉर्शन, ये लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पे ये टूल जो है वो डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन लग गई, ये भी स्ट्रेट लाइन लग गई, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है ना वो सारा ये जो ग्रिड सिस्टम है जो कि स्ट्रेट लाइंस के ऊपर कंपोज कर रहा है वो आप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो 3D मैप है, जो ग्लोब है वो आपका 2D सरफेस के ऊपर, कार्टेशियन सरफेस के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, सिलेंडर की पोजीशन को चेंज करते जाएंगे, सिलेंडर को मतलब ना पोजीशन को चेंज करते जाएंगे, और इस तरह से आप ये जो वर्टिकल लाइंस हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये आप ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से पूरा जो ग्लोब है वो आपका इस तरह से प्रोजेक्ट हो जाएगा 2D कार्टेशियन सरफेस के ऊपर। So this is the little introduction of the UTM coordinate system, and you see that कि इसमें भी जाहिर है कि x इसमें आपका latitude lines हैं और longitude lines, ठीक है। So UTM coordinate system is formed by superimposition of a regular square grid, ये आपने याद रखना है कि regular square grid on each UTM projection zone of, इसमें फिर यूटीएम प्रोजेक्शन जोन्स बनते हैं, जोन ऑफ 6 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड विड्थ। ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि 6 डिग्री लॉन्गिट्यूड विड्थ, 6 डिग्री लॉन्गिट्यूड विड्थ का मतलब ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, ठीक है, और ये इसकी विड्थ कितनी है, 6 डिग्री। ये जो इसको आप जोन भी कहेंगे, ये लॉन्गिट्यूड दो लाइनों के दरमियान जो एरिया इसको जोन कहेंगे, ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से ये जोन बनते जाएंगे, ठीक है। तो इनकी जो विड्थ है वो 6 डिग्री होगी, ये मतलब टू बी on I mean simple to be on I mean to understand these things in a very simple manner, you are going to understand whatever is written on I mean as a flat statement, you can go back and see what does it mean, ठीक है, कि जो स्टेटमेंट में लिखा है आप उसको मैप के ऊपर देखें फिर आपको समझ आएगी। ऑलराइट, तो 6 डिग्री का आपका जोन होता है, ठीक है, डिग्रीज लॉन्गिट्यूड विथ। The UTM zones are numbered 1 to 60 starting at 180 degrees, ठीक है, starting at 180 degrees वेस्ट, मतलब 180 डिग्री वेस्ट से शुरू होगा और उसके बाद वो आपका जो है ना वो ईस्ट की तरफ आएगा। तो ये जोन्स जो है वो डिफाइन हो जाएंगे, 180 डिग्री वेस्ट टू 174 डिग्री वेस्ट सेंट्रल मेरिडियन। और इसको आपने ड्रॉ कैसे करना है कि अगर 180 डिग्री 180 डिग्री से 184 डिग्री का एक जोन हो गया लेट्स सपोज, उसका सेंट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा 177 के ऊपर, क्योंकि 6 डिग्री है तो उसका सेंट्रल पॉइंट होगा 177। इसको मैप के ऊपर ये देखें, आपका वेस्ट से शुरू होना है, मतलब यहाँ से शुरू हो रही है, देखें, ठीक है। ये इस तरफ जो है वो आपका ये आपके कितने जोन है, 60 जोन, आप ये देख रहे ये आपके 60 जोन यहाँ तक है, ठीक है। हर जोन की विड्थ कितनी है, 6 डिग्री, ये आपने याद रखना।
तो इस तरह से ये आपके पास 60 जोन्स अवेलेबल है। अगर आपने अगर देखना है कि पाकिस्तान कहाँ पे है, तो लेट्स फाइंड आउट पाकिस्तान। पाकिस्तान मैप के ऊपर कहाँ पे है? सो दिस इज अ लिटिल क्वेरी, सो लेट्स फाइंड आउट। अब आपको ये भी पता है कि वो जो पाकिस्तान है वो आपका ईस्टर्न साइड की तरफ है, ठीक है ना, वो वेस्ट की तरफ नहीं, ईस्ट की तरफ। अब यहाँ पे आ जाए तो ये अरेबियन सी है, और ये देखिए ये पाकिस्तान, यू सी दैट दिस इज पाकिस्तान। और पाकिस्तान किस जोन में है? पाकिस्तान जोन 41, 42 एंड 43, तीन जो जोन है इसके अंदर पाकिस्तान है, बाउंडेड है। 41, ये देखो 41, 42, 43। सो दिस इज द रीजन वाई जब आप मैप्स को डील करते हैं तो ज्यादातर आपके जो जोन्स हैं वो अगर लाहौर है या इस तरह से ऊपर वाले एरिया है वो 43 नॉर्थ जोन में आता है, ठीक है। 43 नॉर्थ में आपका वो जो है वो क्या कहते हैं उसे आपका जो एरिया है वो उसके अंदर लाई करेगा। यूटीएम के अंदर जब आप मैप में प्रोजेक्ट करेंगे डिफरेंट क्या कहते हैं उसे जियो रेफरेंसिंग कोऑर्डिनेट्स को, तो उसमें आप कन्वर्ट करके उसको यूटीएम में जब लेके आते हैं तो नॉर्थ 43 जोन आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बलोचिस्तान की तरफ हैं तो आपको 41, अगर आप केपीके की तरफ है तो आपको 42 भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे आपका एरिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके वेस्ट से ईस्ट की तरफ 60 जोन्स हैं और हर जोन के अंदर 6 डिग्रीज है, ये आपने याद रखना। उसकी विड्थ 6 डिग्री है। All right. Each UTM zone is divided into 8 degrees. Each UTM zone is divided into 8 degrees horizontal band. उसके बाद क्या है कि वो जो ये जो आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में ये एक्चुअली पूरा स्क्वायर नहीं है। इसमें इस तरफ वाली जो विड्थ है वो 6 डिग्री है और ऊपर वाली जो लॉन्गिट्यूड्स वाली विड्थ है वो 6 डिग्री है। लेकिन जो लैटिट्यूड्स है, ये देखिए ये जो आपके लैटिट्यूड्स है इसके दरमियान जो विड्थ है वो 8 डिग्री है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये जो स्क्वायर है इसकी डायमेंशंस क्या है, इसकी जो ये जो ग्रिड बन रहा है इसकी डायमेंशंस क्या है? 6/8, ठीक है। तो 6 डिग्रीज हॉरिजॉन्टल बैंड्स ऑफ लैटिट्यूड, ये चीज आपने याद रखनी है। आइडेंटिफाइड बाय लेटर्स बिगिनिंग एट 80 डिग्रीज साउथ with the letter C and ending with the letter X at 84 degree north। मैप पे वापस चले जाएं कि व्हाट डज इट मीन। अब ये देखेंगे ये लेटर सी से ये शुरू हो रहा है, देख रहे हैं हम लेटर सी से, उसके बाद डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, उसके बाद लेटर एक्स तक ये जा रहा है, देख रहे हैं आप इसको इस तरफ। लेटर एक्स जो है वो ये आपके पास ये लैटिट्यूड वाइज जोन है और इस तरफ जो है वो लॉन्गिट्यूड वाइज जोन है, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाला जोन है ये थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे 12 डिग्रीज है, ठीक है। 12 डिग्रीज इसलिए है कि ये यहाँ पे एक्सट्रीम किस्म की डिस्टॉर्शन है ये, क्योंकि आप देखेंगे ये सारा जो एरिया है ये सारा आपस में कन्वर्ज्ड है, ये सारा एरिया ये आपस में कन्वर्ज्ड है ग्लोब के ऊपर। तो इसलिए ये जो जोन है ये ज़्यादा बड़ा है और इसमें एक्सट्रीम डिस्टॉर्शंस हैं। तो यूजुअली यूटीएम जो है वो इस यहाँ जो ये वाले एरियाज हैं उसके लिए यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। जो लैटिट्यूड्स और जो फ्लैट आपके पास जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे ये जो रीडिंग्स है वो ज़्यादा बेहतर देता है। तो ये जो जोन है ये वाला जो है यहाँ पे ये ज़्यादा बेहतर जो है वो रीडिंग्स देता है, ठीक है। ऑल राइट। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें मैप के ऊपर देख लें कि व्हाट डज इट मीन, जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है। The letters I and O are skipped। अब इसमें जो है ना वो लेटर I and O are skipped to avoid confusion with the numbers 1 and 0। Simple। Zone X spans 12 degrees। This is what we talked about instead of 8 degrees। So the UTM system are expressed as a distance in meters, ठीक है, to east। इसमें ईस्टिंग और नॉर्थिंग होती है, इसमें डिस्टेंस जो है वो आपका ईस्टिंग और नॉर्थिंग में दिया जाता है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो इसमें जो सेंट्रल मेरिडियन है उसका वो जो है वो 500,000 मीटर के ऊपर है सेंट्रल मेरिडियन इसका। इक्वेटर जो है वो 0 मीटर नॉर्थ फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 10 मिलियन मीटर फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर। इस तरीके से आप उसकी डिवीजन जो है वो इस तरीके से बनाइए, ये फिगर्स आपने याद रखने हैं। ऑल राइट। तो जब आप मैप में जोन्स को देखना है, आप जब यूटीएम के ग्रिड्स आप ड्रॉ करेंगे तो फिर आप देख लेंगे कि आपका एरिया किस जगह किस
जोन में है। लेट्स सपोज ये वॉशिंगटन स्टेट है अमेरिका की, ठीक है, ये इसकी लैटरल एक्सटेंट है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ये जोन नंबर 10 और 11 में सिचुएटेड है। जोन नंबर 10 और 11 वो ये देखें, इसको ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे आपको सियाटल जो है वो, यहाँ पे आपको वो स्टेट नजर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं कौन सा एरिया कहाँ पे है। उसके बाद फर्दर आपने किसी पॉइंट की देनी है आपने क्या कहते हैं उसे, डायरेक्शन। तो उसको कैसे मेजर करना है, उसके लिए फिर ये है कि इस तरह से यूटीएम बेस्ड टोपो शीट्स होती हैं। तो ये यहाँ पे देखेंगे ये डिस्टेंस गिवन है नॉर्थ से, ये देखिए ये थाउजेंड में 4345 किलोमीटर। ये इसका क्या मतलब है, 4345 किलोमीटर के बाद आगे जीरो जीरो का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली ये यहाँ पे जो है ना वो किलोमीटर की फॉर्म में डिविजन की बना है, जीरो जीरो मीटर का ये मतलब। ये देखें ये जो एक ग्रिड है ये 1/1 किलोमीटर का है। तो यहाँ पे क्या है 44,344, इसका मतलब ये आपके पास 1 किलोमीटर है इसका ग्रिड जो है वो लैटिट्यूड वाइज, और ये लॉन्गिट्यूड वाइज जो डिस्टेंस है वो भी आपका 1 किलोमीटर। ये देखिए 706। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, ये 700 है, इसमें 1000 वाला नंबर नहीं है, 707 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्रिड की अगर आपने जो क्या कहते हैं उसे इसकी डायरेक्शंस को आपने इसको राइटिंग में लेके आना, तो ये क्या कहेंगे, दिस स्क्वायर इज 1 किलोमीटर, this 1 kilometer square is located 706 kilometer east and 4344 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका लेट्स ग्रिड के अंदर कोई वैल्यू है, लेट्स को ये वाली वैल्यू है या ये वाली वैल्यू है, तो इसको कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए फिर हमें छोटा स्केल यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लेस, इस प्लेस की आपने क्या करना है, रीडिंग जो है वो नोट करनी है। तो आप ये देखेंगे कि आपके पास ईस्टिंग में ये ईस्टिंग है, और ये क्या है, ये नॉर्थिंग, ये नॉर्थिंग, ठीक है। तो ये देखें 706 उसके बाद आप स्केल से पढ़ेंगे, देखिए स्केल से जब आप इधर जाएंगे तो ये आप देखेंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मीन्स 80 आ जाएगा, 800 मीटर आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स के बाद शुरू हो रहा है ये मीटर्स, ये 1000 मीटर्स के अंदर है, ठीक है। जितने मीटर्स बढ़ते जाएंगे, मतलब आपके पास अगर लेट्स सपोज 8 है तो उसके बाद 82 1, मतलब इस तरह से आप मीटर तक की एक्यूरेसी में इसको पढ़ सकते हैं। तो इसकी रीडिंग आ जाएगी 706.8 किलोमीटर ईस्ट। उसके बाद आप इसको यहाँ से पढ़ लें, जो आपके पास नॉर्थ वाली साइड है, 1 2 3 4 5, तो इसमें आ जाएगा 4344.4 किलोमीटर वेस्ट। So this is how you are going to read out the location of a particular point on a UTM scale, ठीक है। UTM जो आपका प्रोजेक्शन जो स्केल है, वहां पे आप इसको किस तरीके से डिटरमिन करेंगे किसी भी लोकेशन। तो जीपीएस आपका इसी रूल को फॉलो करता है। सो इसकी फर्दर आपको जो डिवीजन है स्केल की वो यहाँ पे गिवन है, जैसा हमने पढ़ा, जैसे ये है। लेट्स सपोज पहले आप जोन को डिफाइन करेंगे कि जोन में है, उसके बाद देखेंगे कि लेट्स सपोज ये 500 एंड अब ये देखिए इसमें जीरो का क्या मतलब है कि यहाँ पे 1000 वाला जो है वो मिसिंग है, फिर उसके 500 वाला यहाँ पे है, उसके बाद 100 वाला यहाँ पे है, 10th वाला है, फिर उसके बाद ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो यूनिट्स वाला है, उसके बाद पॉइंट में लेके जाएं तो ये थाउजेंड्स में आ जाएगा। ये आपका 100 मीटर में है, ये टेंस ऑफ मीटर में, यूनिट मीटर में। इस तरह से आप प्रिसाइज लोकेशन जो है वो किसी भी पॉइंट की इस स्केल के मुताबिक आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जितना ग्रिड छोटा होता जाएगा उतनी ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। So this is all for this week, and please let me know if you have any questions। अगर आपको समझ नहीं आई किसी चीज़ की, आप लेक्चर को रिवाइंड करके देख लें। अगर फिर भी समझ नहीं आती, यू आर वेरी वेलकम टू आस्क मी द क्वेश्चंस। आई विल एनकरेज, अगर आप कोई क्वेश्चन मुझसे करेंगे, बल्कि मैं आपके रोल नंबर्स भी नोट रखूंगा कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं और आप मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। So thank you very much, and this is all about for this week.
and inshallah next time we will come with another topic. Thank you.